Hello, Matujima, and you're watching Morning Pulse on Honorable TV. In a major decision taken at its first cabinet meeting, the Kerala government has approved the implementation of 2 key election guarantees. Addressing a press conference, Chief Minister V.D. Sadesan announced that free travel for women and transgender persons in ordinary Kerala State Road Transport Corporation KSRTC buses will be rolled out from June 15 with no age or income restrictions. The Chief Minister also announced the creation of a dedicated department for senior citizens as part of government's welfare initiatives. He said the state government will bear the financial burden of the free travel scheme, estimated at around Rs 750 to 800 crore annually, and will compensate KSRTC for the expenditure. The move marks the first step in fulfilling the promises made by the government during the election campaign. Indira Guarantee, the first cabinet meeting, we have taken a decision to implement 2 guarantees, which we out of 5 which we have offered during the election time. First was the free journey in the Kerala State Road Transport Corporation buses. Second, to constitute a new department for senior citizens. The first decision, we have taken a decision today itself to implement this project from 15th June onwards. 15th June onwards, in all the ordinary buses in Kerala, they will get a free travel. There is no condition, age, and the transgenders also. They will also get this benefit. No income limit, no age limit, nothing in the ordinary buses. And government has to pay Rs 750 to 800 crores to the KSRTC. That is the liability. We will pay this amount to KSRTC. We will take that liability. At the inaugural session of the Food, Agro and Biotech FAB Summit 2026 held at the OUAT campus, Odisha, Governor Hari Babu Kambhampati highlighted how the COVID-19 pandemic accelerated digital transformation across India. He noted that the crisis encouraged innovation and out-of-the-box thinking, leading to the rapid adoption of digital technologies and the emergence of major e-commerce and quick commerce platforms such as Zepto, Zomato, Swiggy and Blinkit. He said these developments have reshaped consumer behavior and opened new opportunities for businesses and entrepreneurs across the country. A comprehensive ecosystem where science, entrepreneurship, finance and policy work together to transform the agricultural landscape. We have faced the COVID crisis in 2001-2. That COVID crisis has given the opportunity for the entire country to adopt digital technologies. COVID crisis encouraged the people to think about out-of-box ideas. Many of the commerce e-platforms come into being, whether it is Zepto or Zomato or Swiggy and like. And the number of transactions, millions of digital transactions are taking shape now. Not only in India, our UPI is being acclaimed all over the world, and many of our neighboring countries are also adopting UPI technology. Therefore, COVID crisis, I believe, it has made really India as the digital India. Even a small street vendor used to operate smartphone and make digital transactions. This is the achievement we got. Today, we are facing a different situation. Some 2 countries are quarreling, are engaged in war. Third country has interfered and continuing the war.
which we don't have any relationship or bearing. But the West Asia war has an impact on India, not because of our own deeds, but because of the deeds of some other people. We are facing a crisis now. We are counting for how many days our petroleum reserves are there in the country. How to save our LPG which we have today. I am very happy to note and counter the people who are very pessimistic about India and saying that Indian economy is going to have another tsunami. No, it is not correct. The West Asia crisis is giving an opportunity for India to become the world leader in all respects. How? Indian economy is faced with the major difficulty is we are spending to the tune of 22 to 23 lakh crores of rupees in foreign exchange to import crude oil into the country. This is the highest bill. Let me think about how India can face this crisis. Our Honorable Prime Minister in the recent public meeting at Hyderabad advocated some of the measures to conserve the consumption of the fossil fuels, and he advises the citizens to shift from petrol diesel vehicles to electric vehicles. If you shift to electric vehicles, you need not consume petrol diesel. You are conserving it. Some people immediately ask the question, where from you get electricity? The electricity which you want to consume can be generated by yourselves. You need not depend on anybody. By establishing the rooftop solar system on your house, Honorable Prime Minister has introduced PM Suryaghar Yojana, offering subsidies to establish rooftop solar systems. I am very happy to observe, in addition to the Government of India giving subsidy for rooftop systems, I am thankful for the Government of Odisha, which is offering additional subsidy to have this rooftop solar systems. If you consider about 3 kilowatts solar rooftop system, the subsidy extended by Government of India is 78,000 rupees. The subsidy offered by Government of Odisha is 60,000 rupees. All put together 1,38,000 rupees. But here the vendors are quoting 1,70,000, 80,000. But if you bargain with a proper vendor, the cost of 3 kilowatt system does not exceed 1,40,000. Therefore, without any money commitment from your side, you can have the rooftop solar system. Congress leaders on Tuesday met the Election Commission to raise concerns over the direction of Congress leader Meenakshi Natarajan's Rajya Sabha election nomination. Addressing a press conference, Congress leader Abhishek Manu Singhvi said the nomination was rejected on the basis of what he described as a misconception that a criminal case was pending against Natarajan and had not been disclosed in her nomination papers. Singhvi argued that no such criminal case legally
exists and therefore there was nothing for her to declare in the form. He termed the grounds for rejection ironic and questioned the basis of the decision. अंग्रेजी और हिंदी में आप जरा शांत रहें। जैसा कि वेणुगोपाल जी ने बताया, हमने विस्तृत रूप से डेलीगेशन ने उनके समक्ष ये मुद्दे रखे। नंबर 1 कि रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय बिल्कुल विकृत है, कानूनी रूप से गलत है, किसी हद में किसी तरह से उसको समर्थन नहीं किया जा सकता। वो 2+2 को 5 लिखने जैसा नहीं, बल्कि 2+2 को 7 लिखने जैसा गलत निर्णय है। इसके कारण बड़े सरल हैं। एक आधार पर मिस मीनाक्षी नटराजन को आरओ ने निरस्त कर दिया उनके नॉमिनेशन पेपर को। वो आधार था ये गलतफहमी कि कोई क्रिमिनल केस जो इनके विरुद्ध पेंडिंग है उसका इन्होंने खुलासा अपने फॉर्म में नहीं किया। मजे की बात यह है कि कोई भी क्रिमिनल केस ऐसा नहीं है जो कानून में एग्जिस्ट करता है, स्थित है, जिसका वो खुलासा कर सकती थी। कोई नहीं है। एक नोटिस आया है कोर्ट से कि आप आइए और बताइए कि हम कॉग्निजेंस इस केस का लें कि नहीं लें। ये पहली कक्षा का कानूनी विद्यार्थी जानता है कि कॉग्निजेंस यानी संज्ञान लेना एक प्राथमिक स्टेज होती है मैजिस्ट्रेट द्वारा, और वो इसलिए ली जाती है कि मैं ये निर्णय करूं कि ये केस आगे चलना चाहिए कि नहीं। बिना कॉग्निजेंस के कोई भी क्रिमिनल केस जन्मता ही नहीं है, क्रिएट ही नहीं होता है। अब मजे की बात यह है कि जो इलेक्शन कानून है, जो चुनाव आयोग का कानून है, जिसमें ये खुलासा की उत्तरदायित्व है, उसमें लिखा है स्पष्ट कि आपको सिर्फ वो वाला खुलासा करना है जिसमें अपराध अगर प्रूव हो तो दंड 2 वर्ष से ज्यादा हो और जिसमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हो। ये कानून में लिखा है सेक्शन 33A में, जो हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसका उत्तरदायित्व, उसका कर्तव्य है आरओ को देखने की। अब इसमें कॉग्निजेंस की प्रथम श्रेणी में नहीं आता ये, यानी मैजिस्ट्रेट ने अभी तक कॉग्निजेंस नहीं लिया। अगर और जब वो उनको सुनने के बाद, मिस मीनाक्षी नटराजन को सुनने के बाद कॉग्निजेंस लेंगे, संज्ञान लेंगे, उसके बाद तहकीकात होगी। तहकीकात के बाद चार्जशीट होगी अगर हुई, और चार्जशीट के बाद चार्जेस फ्रेम होंगे। यानी 3 आगे के अभी तक हिस्से बचे हैं। प्राथमिक हिस्सा संज्ञान का नहीं हुआ और आरओ ने मान लिया। Marking Prime Minister Narendra Modi becoming India's longest continuously serving Prime Minister, Union Minister Ashwini Vaishnav highlighted the government's achievements in internal security, self-reliance and cultural preservation. He said that Naxalism, once a major internal security challenge, has been significantly curbed under the current leadership. Vaishnav also underscored Prime Minister Modi's vision of a developed India built on the foundation of self-reliance, adding that for the first time in the country history, India's heritage is being accorded due to respect. He said the Prime Minister is advancing the nation by balancing development with the preservation and promotion of its cultural legacy. एयर स्ट्राइक की और ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पाकिस्तान के उन क्षेत्रों को भी टारगेट किया जो पहले अकल्पनीय थे, पहले कभी सोचा नहीं जाता था। उन क्षेत्रों को भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके ऊपर भी टारगेट किया, और पाकिस्तान के साथ दशकों पहले किए गए अन्यायपूर्ण सिंधु जल समझौते को भी निलंबित स्थिति में रखा गया। और साथियों, जो वर्षों से एक बहुत बड़ा देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा का एक विषय उठता था, नक्सलवाद, आज भारत उस नक्सलवाद से भी मुक्त हुआ है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की एक निर्णायक सोच का, एक बहुत ही स्पष्ट पॉलिसी का एग्जाम्पल है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का यह दृढ़ विश्वास रहा है कि आत्मनिर्भर हुए बिना भारत विकसित नहीं हो सकता। इसीलिए आज भारत डिफेंस,
इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, फार्मा, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में भारत के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। विश्व में भारत ने एक अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। सशक्त रूप से भारत उभरा है, चाहे G20 हो या ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को स्वर प्रदान करना हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाना हो, हर तरह के कार्यक्रम में भारत ने लीडरशिप ली है। और भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि हमारी विरासत को सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाने लगा। एक लंबे समय तक ब्रिटिश टाइम फ्रेम में, ब्रिटिश पीरियड में हमारी विरासत को हमेशा नकारा जाता था और वही कांग्रेस के कार्यकाल में हमारी विरासत को एक तरीके से इग्नोर किया गया था। उस विरासत को, उस बहुत ही समृद्ध विरासत को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राथमिकता दी और विरासत के साथ विकास को लेकर आगे बढ़े। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की 140 करोड़ सिटीजन्स की कामयाबी है कि पिछले 12 वर्षों में देश को प्राप्त राजनीतिक स्थिरता, 30 वर्षों की, 3 दशकों की राजनीतिक इंस्टेबिलिटी को जनता ने नकारा और बहुत ही मैच्योर वे में एक स्टेबल गवर्नमेंट 1 बार, 2 बार और 3 बार भारत ने चुनी। ये भारत की राजनीतिक परिपक्वता का और हमारी डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी का बहुत बड़ा सिंबल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो 7 संकल्प लिए वो मैं पढ़ूंगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता है। गरीब कल्याण एवं वंचित वर्गों के सशक्तिकरण हेतु उनके नेतृत्व में हुए कार्यों के लिए आभार व्यक्त करता है। उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को सराहना करता है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए कृतज्ञता प्रकट करता है। समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एवं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु उनके नेतृत्व की प्रशंसा करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल विश्वास व्यक्त करता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर, सुरक्षित, समृद्ध और गौरवशाली राष्ट्र के रूप में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहेगा और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का मार्ग सशक्त करेगा। Speaking on the cancellation of Parimal Nativani's Rajya Sabha nomination, Advocate Surinder Singh Chauhan said that objections were raised during the scrutiny process. He stated that after the nomination papers of JMM and Congress candidates were examined, discrepancies were found in the papers filed by independent candidate Parimal Nathwani. According to Chauhan, one of the issues noted was inconsistency in the candidate's name, which was written as Nathwami Parimal instead of Parimal Nathwani. नॉमिनेशन की प्रक्रिया के दौरान कल जब स्क्रूटनी हो रहा था तो स्क्रूटनी में 3 कैंडिडेट राज्यसभा के जिन्होंने अभ्यर्थी थे उन्होंने नॉमिनेशन नामांकन पत्र भरे थे। उसमें पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हमारे अभ्यर्थी थे उनका एक्सेप्ट हुआ। उसके बाद कांग्रेस के जो अभ्यर्थी थे महागठबंधन के दोनों कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन नामांकन पत्र उन्होंने एक्सेप्ट किया। और जब एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है परिमल नाथवानी, उनका जब नॉमिनेशन आया तो नमन डिक्सल जी हैं कौनगिरी के एमएलए साहब, जो प्रपोजर हैं प्रणव झा जी के, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया और उस ऑब्जेक्शन को हमने लिया कि जो नाथवानी जी परिमल जी हैं इनका जो असली नाम है वो नाथवानी परिमल नहीं, परिमल नाथवानी है। और साथ ही इन्होंने जो अपने एफिडेविट में इतनी ग्लेरिंग डिस्क्रिपेंसी है और जो डिफेक्टिव एफिडेविट है कानून के तहत
उसमें उन्होंने एफिडेविट फाइल नहीं किया, और जो सीधा सीधा रूल 4A कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 की वायलेशन है, क्योंकि हर अभ्यर्थी को अपने नामांकन पत्र के साथ एक फॉर्म 26 परफॉर्मा है, उसके तहत अपना एफिडेविट देना पड़ता है, और उसमें प्रक्रिया में 6 बिंदुओं पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि आप अपनी धर्मपत्नी का या अपने HUF कोई फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कोई उनकी फर्म है, उसके बारे में या अपने डिपेंडेंट्स के बारे में जानकारी दें। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे कॉलम उड़ा दिए और 2 कॉलम केवल अपना और अपनी पत्नी के बारे में इन्होंने जानकारी उपलब्ध कराई, जो कि आपके सब दीर्घा में लगा हुआ है और इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। हमने जब वो सब पढ़ा और हमने बिंदुवार क्रम में उसका जब हमने वो तहकीकात की, तो हमने पाया कि ये जो एफिडेविट है ये गलत है और ये गलत नहीं हो सकता। और हमने जब दिया उनको ऑब्जेक्शन, और ऑब्जेक्शन के तहत जब उन्होंने उसको 4 बजे कल 4 बजे रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने एक उनको लेटर दिया कि इस क्रम में आप अपना कोई कंडिकावार अपना जवाब दें, तो उन्होंने क्या किया, बड़ा स्मार्टली अपने कंडिकावार जवाब में एक नया एफिडेविट सारी त्रुटियों को ठीक करके फाइल कर दिया, जो कि एक गैर कानूनी है। रिटर्निंग अधिकारी इस कंडिकावार रिप्लाई के साथ कोई भी एफिडेविट, कोई भी नया डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमने इस बिंदुओं पर प्रकाश डाला और उनको कहा कि ये जो है आपकी जो पावर है वो कानून के तहत नगण्य हो गई है। आपको केवल और केवल 36 सेक्शन के तहत जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, स्क्रूटनी के टाइम में केवल और केवल स्क्रूटनी करना है, आप किसी प्रकार का कोई भी नया डॉक्यूमेंट नहीं ले सकते। और अभी जब सारा बहस किया, उन्होंने कंसीलमेंट किया, सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट है कि वो एक गुजरात पेट कोक के डायरेक्टर हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। उनका दिल्ली में एक फ्लैट है CWG कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। वो जानकारी उनके पिछले एफिडेविट में उपलब्ध है। और उसके बाद उन्होंने कई जो क्वेरीज हैं उनके बारे में कोई भी अपना आंसर नहीं दिया। इसलिए फॉर्मेट, बिल्कुल फॉर्मेट चेंज है, वो इलीगल फॉर्मेट है, गैर कानूनी है। और हमें आशा है कि जो होना चाहिए वो उनका नामांकन रद्द होना चाहिए, पर जो लग रहा है उसके बारे में भी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अभी मैं जब मुझे आदेश की प्रतिलिपि मिलेगी, क्योंकि उन्होंने 12 बोला है कि 5 या 6 बजे तक वो आदेश की प्रतिलिपि देंगे, उसके बाद ही हम कोई आपको बात बता सकते हैं। धन्यवाद। That's all we have for now. Keep watching on Bill TV.